Hello students, hope you are all right. So today we are doing lesson plan 4, comparing genres of block 8, and you will be able to compare and contrast biography and autobiography. Compare means find the similarities and contrast means find the differences. So you will be able to find the similarities and differences between biography and autobiography. So far, the block has covered various details about an autobiography. अभी तक ब्लॉग में ऑटोबायोग्राफी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स डिस्कस हो चुकी हैं. Namely that it is true story written by an author about his her own life. ये एक ट्रू स्टोरी होती है, रियल लाइफ स्टोरी होती है. ऑथर अपनी लाइफ के बारे में डिस्क्राइब करता है. इट इज़ रिटन यूजिंग फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी जाती है. एंड इट इंक्लूड्स सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड पीपल दैट इन्फ्लुएंस्ड एंड कंट्रीब्यूटेड इन द लाइफ ऑफ एन ऑथर. और इसमें इम्पोर्टेंट इवेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं, अचीवमेंट्स इंक्लूड की जाती है, पीपल इंक्लूड किए जाते हैं. द ब्लॉक हैज़ ऑल्सो कवर्ड फ्रेजल वर्ब्स विच आर phrases formed by verbs and prepositions together. In S3 we did it. The meaning of phrasal verbs can be inferred by reading the complete sentences. किसी भी phrasal verb के मीनिंग को अगर आप इन्फर करना चाहते हैं तो अगर आप पूरा सेंटेंस रीड करेंगे तो ये इजीली पॉसिबल है. Now you may often struggle to identify how an autobiography is similar and how it is different. So what did we learn about Samantha in the excerpt from my 13th winter? जो हमने 13th winter जो excerpt biography जो हमने पढ़ी थी समंथा बील की, समंथा बील के बारे में उससे हमें क्या पता चलता है? How does the story qualify to be an autobiography? We learned that Samantha Abil had a maths related learning disability due to which she couldn't tell time, remember her local combination or count out change even in the 7th grade. मैथ्स रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी थी, वो टाइम नहीं बता पाती थी, लॉकर नंबर उसे याद नहीं रहता था, चेंज काउंट नहीं कर सकती थी वो. सो डिस्पाइट हर वीकनेस इन मैथ शी एक्सेल्ड इन हर राइटिंग क्लास. मैथ्स में वीकनेस के बावजूद भी उसने अपनी राइटिंग क्लास में काफ़ी अच्छा किया. She could write poetry. Her mother, her teacher Mrs. Williams and a family friend Charlie Murphy helped to refine her poetry skills. उसकी जो टीचर थी मिसेस विलियम्स, उनकी मम्मी और उनकी मम्मी के एक फ्रेंड थे चार्ली मर्फी, उन तीनों ने मिलके एक कोलाबोरेशन से उसकी पोइट्री स्किल्स को रिफ़ाइन करने में, इम्प्रूवमेंट करने में काफ़ी हेल्प की. सो now we will read this paragraph. Samantha Abil was a bright student who had a gift for language, yet struggled with simple maths problems. Samantha Abil एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी जिसे लैंग्वेज का गिफ्ट मिला हुआ था. मीन्स लैंग्वेज पे बहुत अच्छी कमांड थी उनकी, और लेकिन उन्हें प्रॉब्लम थी मैथ्स में. एज शी ग्रू ओल्डर हर मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑल्सो ग्रू. जैसे जैसे वो बड़ी हुई उनकी मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम भी उनके साथ ग्रो होती गई. An excellent poet and writer, she could not tell time or even calculate simple addition or subtraction. Excellent writer थी लेकिन time नहीं calculate कर सकती थी, addition subtraction नहीं कर सकती थी. The signs of a learning disability were present throughout her childhood. ये जो सारे problems थी ये उसके बचपन से ही थी. In 7th grade she began to suffer anxiety attacks as she struggled with the pressures of junior high school, from balancing schoolwork to remember local combinations and social situations with her peers. तो इस तरह से वो प्रॉब्लम फेस करती थी. लॉकर कॉम्बिनेशन याद नहीं रहता था, होमवर्क का प्रेशर था, और जो फ्रेंड्स के साथ जो सोशल सिचुएशन वाली प्रॉब्लम्स आती हैं इन सब से वो सफ़र कर रही थी. Her teachers struggled to understand why a good student like Samantha wasn't able to excel. और टीचर्स भी confused थी कि ये इतनी अच्छी बच्ची है फिर क्यों प्रॉब्लम हो रही है. Samantha struggled with the feelings of failure until she was finally diagnosed with a maths related learning disability at 13. जब वो 13 ईयर्स की थी तो डॉक्टर ने बताया उन्हें मैथ्स रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी है, और उन्हें 13 ईयर्स की तभी ये पता चला. उससे पहले वो भी टेंशन में रहती थी कि क्या कारण है, क्यों मैं सक्सेस नहीं हो पा रही हूँ. ऑन द वर्ज ऑफ द कोलैप्स फ्रॉम पैनिक अटैक शी सडनली अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग.
Her parents understood that now she should focus on developing her gifts and compensating for her weakness in a positive and constructive way. अब उसके पेरेंट्स भी समझ गए थे कि ठीक है, अगर मैथ्स में प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, लैंग्वेज का जो गिफ्ट मिला है राइटिंग क्लास में वो अच्छी है, उसे उस पर फोकस करना चाहिए. So, in order to do this, her parents collaborated with her 7th grade English teacher who helped Samantha focus on her writing skills. तो अब इस पे काम करने के लिए उसके पेरेंट्स ने उसकी जो टीचर थी, इंग्लिश टीचर मिसेस विलियम्स, उनके साथ बात की, कांटेक्ट किया उन्हें. फिर उन सब ने मिलके समंथा की हेल्प की राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, अलॉन्ग विद अ फैमिली फ्रेंड चार्ली मर्फी, who happily lent his paintings to act as inspirations for Samantha's poems. दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर इन हर लाइफ. और जो उनकी मम्मी के एक फ्रेंड थे चार्ली मर्फी, वो भी अपनी पेंटिंग जो है लेंट करने के लिए, उन्हें देने के लिए राज़ी हो गए, अग्री हो गए, और इस तरह से समंथा की लाइफ में एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई. So who is the paragraph about? Is the person real or imaginary? Does it qualify as a fiction story or is it non-fiction? जो पैराग्राफ अभी हमने रीड किया है वो किसके बारे में है? क्या वो रियल है, या जो पर्सन है वो रियल है या इमेजिनरी है, और जो स्टोरी है वो फिक्शन है या नॉन फिक्शन है. दिस पैराग्राफ इज़ अबाउट समंथा बिल. शी इज़ रियल पर्सन. Since the paragraph is about the life of real person and includes real incidents from the life of that person, it qualifies as non-fiction. जो real stories होती हैं वो non-fiction होती है. I have told you earlier. From which point of view is the paragraph written? How is it different from my 13th winter, a memoir? Why is it different? इसमें कौन सा point of view paragraph में use हुआ था और 13th winter से कैसे different है? The paragraph is written from the third person point of view. थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है. जो पैराग्राफ अभी हमने रीड किया है, it describes the life of someone else and uses the pronoun she for Samantha. इसमें किसी और की लाइफ के बारे में बताया गया है और समंथा के लिए आई यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पे शी यूज़ किया गया है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम माई 13th winter a memoir which is written from a first person point of view. जो हमने माई 13th winter a memoir हमने रीड किया था बुक में, वो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ था. In the memoir, Samantha is writing about her own life and uses the pronoun I and we. तो उसमें समंथा अपनी लाइफ के बारे में खुद डिस्क्राइब कर रही थी, तो समंथा ने वहाँ पे आई और वी का यूज़ किया था. Therefore, it is an autobiography. On the other hand, the paragraph is more of a biography that describes the life of a person and the narrator is not involved in the story. सो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी सिमिलैरिटी तो है दोनों में, कि दोनों ही रियल लाइफ पर्सन के बारे में होती हैं, रियल स्टोरी होती है. बट बायोग्राफी इज़ रिटन बाय समवन एल्स, बायोग्राफी कोई और लिखता है, एंड ऑटोबायोग्राफी इज़ रिटन बाय द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ऑटोबायोग्राफी पर्सन खुद लिखता है. So what message do you get from my 13th winter a memoir? What is the purpose of writing Samantha Beale's biography and autobiography? A memoir is an account of Samantha's own struggle and her victory over it. मेमोर जो है समंथा की अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में है और कैसे उसने जीत हासिल की. इट गिव्स होप टू पीपल स्ट्रगलिंग इन सिमिलर सिचुएशंस टू कंटिन्यू टू फाइट एंड फोकस ऑन डेवलपिंग द स्ट्रेंथ्स इन वन सेल्फ. ये लोगों को होप देता है जो इसी तरह की सिचुएशन से स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान हैं, ताकि वो डिफ़िकल्टी से लड़ सकें और अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें. इट इंस्पायर्स दोज adults who are with students of such disabilities to lend help in whichever way they can. ये ऐसे एडल्ट्स को भी इंस्पायर करता है जिनके कॉन्टेक्ट में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी एरिया में वीक हैं, तो वो कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं. इट ऑल्सो स्प्रेड्स द मैसेज ऑफ वर्किंग थ्रू एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस ब्रेवली विदाउट गिविंग अप. ये मैसेज देता है कि कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, हमें बिना हिम्मत हारे, बिना हार माने उसे पूरा करना है उस काम को,